Good morning, students. Today I'll be covering India's to test your knowledge question. ये अपना पेंडिंग था. So test your knowledge के क्वेश्चन से India's 2 के वो कंप्लीट कर लेते हैं. बाकी तो हम लोग India's 2 के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, मैनेजेबल है, बट बस ये कंप्लीट करने वाली बात है. वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस so that when you prepare, when you start preparing for exam, it won't be difficult for you. Look at the questions. Test your knowledge, India's 2. हेडिंग भी दे दो एक. ICI module, test your knowledge questions. ICI module, test your knowledge. India's 2. Question number 1. India's 2, question number 1. UA Limited purchase raw materials of 400 per kg. Company does not sell raw materials but it uses in production of finished goods. तो कंपनी रॉ मटेरियल्स अगर बेचती नहीं है तो रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री नहीं है. रॉ मटेरियल्स वो फिनिश गुड्स में ही यूज करती है. The finished goods in which raw material is used is expected to be sold below cost. अरे अगर जो फिनिश गुड्स बनाएंगे उसका जो कॉस्ट लगेगा, हम लोग उसकी सेलिंग प्राइस मार्केट में बिलो कॉस्ट है, तो फिनिश गुड्स क्यों बनाएंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी इज हैविंग 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल्स इन इन्वेंट्री. एज द कंपनी नेवर सेल्स रॉ मटेरियल्स, it does not know the selling price of raw material and hence cannot calculate realizable value of raw materials for valuation of inventories at the end of the year. However, replacement cost of raw materials is rupees 300 per kg. How will you value inventory of raw materials? If you remember this, if finished goods in which raw materials are incorporated are expected to be sold below cost, you know very well, are expected to be sold below cost, then raw materials will be valued at replacement cost, that is cost or NRV, whichever is lower. ये point हमने किया है, raw material valuation. You remember this or not? Yes, sir. ये तो हमने CA इंटर में भी किया हुआ है. जो raw materials finished goods में incorporate होता है, अगर उसकी expected selling price below cost है, if it is sold at cost or above cost, तो raw materials will be valued at cost. लेकिन if it is going to be sold below cost, finished goods अगर below cost बिकता है तो raw materials will be valued at cost or replacement cost, whichever is lower. That is, फिर हम लोग यही मानते हैं कि raw materials भी inventory है और उस पर भी inventory valuation का rules apply होएगा. उस पर भी inventory valuation का rules apply होगा. In short, I will say ये जो 10,000 यूनिट्स है अपने पास, ये जो 10,000 यूनिट्स है,
ये कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होगा। ये रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ दिस रॉ मटेरियल्स इज 400, और इसकी जो एनआरवी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नथिंग बट एनआरवी इज 300, सो इट विल बी वैल्यूड एट 300। 400 पे नहीं वैल्यू होगा। हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है ना? सो दिस इज योर आंसर। चलो लिखेंगे, विल कंप्लीट दिस। सॉरी, लिखो as per Ind AS 2, as per Ind AS 2, raw materials as per Ind AS 2, inventories comma raw materials and other supplies raw materials and other supplies raw materials and other supplies held for other supplies held for use held for use in production of inventories raw materials and other supplies held for use in production of inventories। production of inventories का मतलब होता है finished goods। held for use in production of inventories, ब्रैकेट में लिख दो finished goods, into bracket write finished goods are not written down। हम कभी भी कॉस्ट से नीचे उसको नहीं लिखते, हम उसको ऑन कॉस्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट। आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट if finished goods in which they will be incorporated in which they will be incorporated if finished goods in which they will be incorporated are expected to be sold at cost or above cost। सो फिनिश गुड्स अगर एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट बेचेंगे तो हम लोग रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज को हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर डिक्लाइन इन प्राइस है, डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ मटेरियल्स है, और ये एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है, हाँ सेलिंग प्राइस है, दैट विल बी लोअर देन कॉस्ट, तो फिर रॉ मटेरियल्स को हम लोगों को रिप्लेसमेंट प्राइस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाउएवर when there is a decline, when there is a decline in the price of materials,
However, when there is a decline in price of materials and it is estimated that cost of finished goods and it is estimated that write this way, expected selling price it is estimated that expected selling price of finished goods will be above नहीं lower than its cost. So हाँ क्या लिखा है मैंने? However, when there is a decline in price of materials and it is estimated that expected selling price of finished goods will be lower than its cost. Then raw materials and supplies would be valued at replacement cost. That is NRV. क्योंकि फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में वही लोअर होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इन द प्रेजेंट केस in the present case 10,000 kgs of raw materials in the present case 10,000 kgs of raw materials inventory will be valued at replacement cost of rupees 300 per kg. 300 per kg. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. और ये सिंपल क्वेश्चन था. इनफैक्ट ये तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग सीए इंटर में भी कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Sun Limited has fabricated special equipment, solar power panel during 2012 as per drawing and design supplied by customer. उन्होंने एक स्पेशल इक्विपमेंट बनाया है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा बनाया है. मतलब ये जनरल यूज सोलार पावर पैनल नहीं है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ने उसके हिसाब से कस्टमाइज करके दिया है.
However, due to liquidity crunch, customer has requested the company for postponement in delivery. कस्टमर के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और उसने डिलीवरी को पोस्टपोन करने बोला है. एंड रिक्वेस्टेड द कंपनी टू विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. बोलते फिनिश गुड्स का जो प्रोडक्शन है, रिक्वेस्टेड कंपनी टू विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स. बोलते अभी जो डिलीवरी है वो रोक ही देना. एंड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ द बैलेंस आइटम्स. जो ऑलरेडी बन चुका है उसका तो डिलीवरी रोक दो और आगे और गुड्स प्रोड्यूस करना नहीं, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसा देने के लिए नहीं है. तो जो ऑलरेडी बना चुके हैं उसकी डिलीवरी तो होल्ड करो और आगे और प्रोडक्शन मत करो. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव, द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स बैलेंस एंड द गुड्स हेल्ड बाय कंपनी एज वर्क इन प्रोग्रेस and finished goods on 31st March 2003 as follows. अपने को डिटेल्स दिए. किस किस की डिटेल्स दी है? नंबर 1 द गुड्स हेल्ड बाय कस्टमर्स. सबसे पहले नंबर 1 द गुड्स हेल्ड बाय कंपनी एज वर्क इन प्रोग्रेस, जो सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है वो, और कस्टमर का बैलेंस, उससे कितना पैसा लेने का है. देखो कस्टमर से लेने का 65 लैक्स. अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इसके लिए तो एक आरडीडी क्रिएट कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने टॉपिक सीख के रखा है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट. सी एंटर का टॉपिक है, इवन इंडियस 10 CA फाइनल में भी है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर अपने को ऐसा लगता है कि कस्टमर के यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है और अपने को पैसा देने में आनाकानी हो सकती है, वो नहीं दे सकता है, तो आरडीडी क्रिएट कर देना चाहिए. अच्छा, फिनिश गुड्स अपने पास 55 लैक्स का पड़ा है और 85 लैक्स का क्या है? सेमी फिनिश गुड्स है. सेमी फिनिश गुड्स है. सो दिस कम्स टू 130, कितना 140 हो गया क्या? 85 प्लस 55 140. इन्वेंट्री पड़ी है फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड 140 की. आगे देखते हैं. द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर हैज बीन फाइल्ड ड्यूरिंग 2000 X2 X3 बाय सन लिमिटेड. सो सन लिमिटेड ने वाइंडिंग अप पेटिशन फाइल कर दिया. कमेंट विद द एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोविजंस टू बी मेड ऑफ 205 लैक्स. अरे 205 लैक्स का मतलब है, वो तो बोल रहे हैं ये तीनों का टोटल मार दिया, तीनों का टोटल 205 लैक्स होता है. बोलते पूरे का प्रोविजन क्रिएट कर दो. इन 205 लैक्स इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस. तीनों ऐड कर दो. सन्ड्री डेटर्स, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दो और एक प्रोविजन क्रिएट कर दो. ये उनका बोलना है. अभी मैं बताता हूँ तुमको अपने को क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू. सो आई डोंट एग्री विद जो लास्ट में उन्होंने 205 लैक्स का प्रोविजन क्रिएट करने बोला है ना, उससे थोड़ा एग्री नहीं होते हम लोग. देखो कस्टमर ने पोस्टपोन किए डिलीवरी, राइट? कस्टमर हैज पोस्टपोन द डिलीवरी. उसके यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच है. तो जो भी कस्टमर ने अगर डिलीवरी को पोस्टपोन किया है तो जितना पैसा उससे लेने का है, अपने को कितना पैसा उससे लेने का है? 65 लैक्स. अरे वो बोल रहा है फाइनेंशियल क्रंच है एंड ही इज पोस्टपोनिंग द डिलीवरी. तो ये जो 65 लैक्स है ना, इसका आरडीडी क्रिएट होना चाहिए. मेरे हिसाब से 65 लैक्स का आरडीडी क्रिएट होना चाहिए. सो गुड्स उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने बनाए थे. मैंने उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड्स बनाए थे. तो अगर उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड्स बनाए हैं तो मैं ये किसी और को नहीं बेच सकता हूँ. आई कैन नॉट सेल इट टू समबडी एल्स बिकॉज आई कैन नॉट सेल इट टू समबडी एल्स. समझा क्या नहीं? तो 65 लैक्स का तो मेरे को डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए. और मैंने क्या है, कस्टमर के अगेंस्ट एक पेटिशन, वाइंडिंग अप पेटिशन भी फाइल कर दिया है. सो आई एम वाइंडिंग अप पेटिशन हम लोग तभी फाइल करते हैं जब हमको ये लगता है कि अब ये पैसा आने वाला नहीं है, द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो क्रिएट होएगा वो तो 65 लैक्स के लिए होएगा.
जो डेटर से हमको पैसा लेने का है। हाँ, रिगार्डिंग दिस इन्वेंट्री, ये जो 140 लैक्स की इन्वेंट्री है, इसका क्या ट्रीटमेंट करने का। सी, ये जो 140 लैक्स की इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री में अपने पास दो है, फिनिश गुड्स और WIP। फिनिश गुड्स और WIP है, तो ये हम लोग और किसी को बेच नहीं सकते क्योंकि ये कस्टमाइज्ड फिनिश गुड्स है। दीज आर कस्टमाइज्ड फिनिश गुड्स। तो ये हमको वैल्यू करना चाहिए एट कॉस्ट ओनली, क्योंकि 85 लैक्स और 55, अगर किसी को बेच सकते तो अपने को NRV मालूम होता। वी डोंट नो द NRV। तो ये अपने बुक्स में एज ए इन्वेंट्री हम शो करेंगे 140 लैक्स पे। नॉर्मली इन्वेंट्री शो होता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे शो करते हैं, बट ये कस्टमाइज गुड्स है, एज पर स्पेसिफिकेशन बनाया हुआ है, तो कोई और लेगा नहीं। अगर कोई और लेता है और NRV अपने को पता चलती है तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर लेंगे। बट अगर अपने को NRV मालूम ही नहीं है तो इन दैट केस कॉस्ट इज द बेटर मेजरमेंट। सो ये हमारे बुक्स में पड़ी रहेगी एस इन्वेंट्री। एकदम सिंपल सा काम है। सो 205 लैक्स का हम लोग कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। मैं तुमको इसका आंसर भी रिफर, ये मेरा जजमेंट है, मैंने इसका कोई आंसर देखा नहीं है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, इसका आंसर एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन इट इज ऑब्वियस दैट सन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पावर पैनल एज पर Ind AS 2 inventories. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business in the process of production for such sale in the form of materials or supplies to be consumed in production process or rendering of services। ये तो definition of inventory दे रहे हैं। Therefore solar power panel held in stock will be considered as inventory। Further, as per standard, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV। स्टैंडर्ड बोलता है इन्वेंट्री कॉस्ट और NRV पे वैल्यू होनी चाहिए। फिर इसके बाद में एज द कस्टमर हैज़ पोस्टपोन द डिलीवरी शेड्यूल ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच, द एंटायर कॉस्ट इनकर्ड फॉर सोलर पावर पैनल विच वेर टू बी सप्लाइड हैव बीन शोन इन इन्वेंट्री। द solar power panel are in possession of the company which can be sold in market. Hence, company should value such inventory as per Ind AS 2। As per Ind AS 2 का मतलब होता है lower of cost और NRV। जो अपने पास पड़ा हुआ है ना वो अपने को एज ए इन्वेंट्री मान के लोअर और ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है। वो आगे बोलेंगे, देखो। Though goods were produced as per specifications of the buyer of company, as per the specification of buyer, the company should determine NRV of these goods in the market and value goods accordingly। इनकी NRV फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू करना चाहिए। Change in value of such power panel should be provided for in the books, and in absence of NRV of WIP of finished product given in question, assuming the cost is lower। अभी in absence of बोल दिया ना, in absence of NRV of WIP and finished goods। अरे क्यों in absence of NRV? क्योंकि वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से बना है, दूसरों को बेचने के लिए बनाया नहीं है। Assuming that the cost is lower, company shall value the inventory at 140 lakhs। 140 lakhs कैसे, 85 lakhs प्लस 55 lakhs। तो जो अपने पास इन्वेंट्री पड़ी है वो हम लोग अपने बैलेंस शीट में एज इन्वेंट्री शो करेंगे एट कॉस्ट। Alternatively, if it is assumed that there is no buyer for such fabricated solar power panel, then NRV will be nil। In such case, full value of finished goods will be provided in the books। ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर कोई बायर ही नहीं है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि NRV इज ज़ीरो। तो NRV इज ज़ीरो तो फिर उसको पूरा प्रोविजन कर देंगे, PNL के डेबिट में इसको लॉस बुक कर देंगे, ठीक है ना। कोई बायर ही नहीं है तो इसको लॉस बुक कर देंगे।
As regards debtors balance, company has filed petition for winding up against customer in 2002-3. It is probable that amount is not recoverable from the party. Hence, provision for doubtful debts for 65 lakhs has been made in the books against the debtors amount. मैं तुमको फाइनल बोलता हूँ, ये वाले क्वेश्चन में फाइनल हमने हमारा जजमेंट भी देख लिया और इनका आंसर भी देख लिया. अब फाइनली क्या करना है बता देता हूँ. इसका आरडीडी क्रिएट होगा. इसके लिए दो चॉइस है. चॉइस नंबर 1, क्योंकि हमारे इन्वेंट्री हमारे कंट्रोल में, कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो वी एज्यूम करते हैं, क्योंकि एनआरवी मालूम नहीं है ना, तो हम एज्यूम करते हैं एनआरवी ज़्यादा ही होगी, तो इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. और सेकेंड ऑल्टरनेटिव, बिकॉज देर इज नो बायर. अब ये इन्वेंट्री बना तो ली, लेकिन इसका कोई बायर ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि ये कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बनाई थी, तो कोई खरीद ही नहीं सकता है. तो ये पैसा मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा लॉस हो गया. तो वो केस में पूरा 140 लैक्स, ये पूरे 140 लैक्स के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री. इसको हम लोग लॉस ट्रीट कर लेंगे पूरे 140 लैक्स के लिए. सो दिस इज चॉइस नंबर 1. इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट बिकॉज एनआरवी, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनआरवी, हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस नहीं है, तो हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में कॉस्ट पे वैल्यू कर लेंगे. हम ये एज्यूम करेंगे कि एनआरवी तो ज़्यादा ही होगी, अगर बिके तो ज़्यादा ही होगी. लेकिन अगर बिके ही नहीं, क्योंकि ये कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है, अगर बिके ही नहीं तो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो लॉस हो गया अपना. देन आवर इन्वेस्टमेंट इज लॉस्ट. तो इन दैट केस इट विल बी शोन एट it will be shown at नहीं, it will be treated as a loss. So ये इसका दो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2, और ये आरडीडी क्रिएट होगा. दिस विल बी द आरडीडी. तो मैं ये लिखवा देता हूं और बाकी लिख देता हूं रिफर आंसर फ्रॉम स्टडी मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 2, तो तुमको क्या शॉर्ट में समराइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, बाकी तुम आंसर स्टडी मटेरियल से पढ़ लोगे. इन्वेंट्री ऑफ WIP and finished goods. Part 1 of answer, inventory of WIP and finished goods. Choice number 1, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में हम लोग इसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे. यहाँ पे अजम्पशन ये है, assumed NRV will be हायर देन कॉस्ट. यहाँ पे assumption ये है कि कोई ना कोई खरीद लेगा, बट चॉइस 2, if there is no buyer, then
it is a loss. If there is no buyer, then it is a loss. और वो केस में एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. टू इन्वेंट्री ऑफ WIP प्लस फिनिश गुड्स, दोनों मिला के 140 लाख है. ये दोनों लिखना पड़ेगा, दिस और दिस. और सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज क्रिएट RDD of 65 lakhs for debtors. मैंने समराइज्ड फॉर्म में लिखा दिया, मेन आंसर तुमको रिफर करना है स्टडी मटेरियल से. बस इसी चीज को उन्होंने एलोबरेट किया है. हाँ, रिफर ICI स्टडी मटेरियल फॉर आंसर. ICI स्टडी मटेरियल फॉर आंसर. ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. हो गया लिख के यहां तक? Yes, sir. Now look at question number 3. On 31st March 2000 X1, inventory of ABC Limited includes spare parts which it had been supplying to number of different customers for some years. Number of different customers for some years. हाँ, सो 31st मार्च इन्वेंट्री ऑफ ABC लिमिटेड में स्पेयर पार्ट्स पड़ा हुआ है विच इट हैड बीन सप्लाइंग टू नंबर ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स. कुछ सालों से बहुत सारे कस्टमर्स को वो लोग कुछ स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स इज 10 millions एंड बेस्ड ऑन रिटेल प्राइजेस द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द स्पेयर पार्ट्स इज 20 millions. कॉस्ट NRV. कॉस्ट क्या देके रखा है? 10 millions. और NRV देके रखा है 12 millions. ठीक है, आगे. On 15th April, due to market fluctuations, expected selling price of the spare parts in stock is reduced to 8 millions and estimated selling expenses is 0.5 millions. So ये कौन से डेट को था? ये था 31st मार्च. ये तो 31st मार्च X1 की बात है, लेकिन इसके बाद 15 तारीख 15 अप्रैल X1 को क्या हो गया? कॉस्ट तो वही है 10 millions, लेकिन NRV 8.5 millions हो गई और साथ में सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, तो मैं 7.5 millions ही मानता हूं. तो 15 अप्रैल को कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन तो नहीं गया था. ये तो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट मान के ऑन 31st मार्च, अरे कंटिन्यू वो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट हम लोग देखते हैं ना, जब रिपोर्टिंग पीरियड तक, रिपोर्टिंग जब तक डेट ऑफ अप्रूवल नहीं आता तब तक अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई तो फिर हम लोग वो कम वैल्यू को 31st मार्च के दिन इन्वेंट्री की वैल्यू डिसाइड करते हैं. सो ऑन 31st मार्च
X1 को ये 10 लाख रुपया नहीं रिकॉर्ड होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड एट 7.5 लैक्स। बच्चों समझा क्या? Yes, sir. फिर उसके बाद अगले साल का क्या हुआ देखो। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुआ है 20 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल तो 20 अप्रैल के पहले ही आता है ना, डेट ऑफ अप्रूवल के पहले मालूम पड़ गया। लेकिन अगले साल 31 मार्च X2 को डायरेक्टर्स नोटेड दैट इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड। ये इन्वेंट्री अभी भी अनसोल्ड है और वेयर हाउस में पड़ी हुई है। डायरेक्टर्स बिलीव दैट इन्वेंट्री इज इन सेलेबल कंडीशन एंड एक्टिव मार्केट। सेलेबल कंडीशन और इसके लिए एक्टिव मार्केट है और उसमें इमीडिएट सेल भी हो जाएगा। सिंस द मार्केट कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड, द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इज 11 मिलियन और सेलिंग एक्सपेंसेस है 10.5 मिलियन। इन शॉर्ट, अगले साल 31 मार्च X2 को क्या पोजीशन है? कॉस्ट तो वही 10 लाख रहेगा, बट NRV 10.5 हो गया है। NRV 10.5 हो गया। क्यों 10.5? क्योंकि 11 मिलियन माइनस 0.5 मिलियन ये कभी हो रहा है 31 मार्च X2 को। तो 31 मार्च X2 को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में कॉस्ट इज लोअर, सो वापस से इन्वेंट्री 10 लैक्स पे वैल्यू हो जाएगी। पिछले साल इन्वेंट्री कितने पे वैल्यू हो गई थी? 7.5 लैक्स पे। तो हम लोग ने 2.5 लैक्स का लॉस बुक किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री। और मैंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिखाया है कि ये लॉस जो है ना, ये रिवर्स हो सकता है। मैंने तुम लोगों को सिखाया दिस लॉस कैन बी रिवर्स्ड। देख लो ना, हम लोगों ने पिछले साल ये इन्वेंट्री कितने पे शो की थी? 7.5, और आज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में NRV लोअर है, तो फिर से 31 मार्च X2 को इसको 10 लैक्स पे शो करेंगे। और जो लॉस बुक किया था ना लास्ट ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री, उसको रिवर्स कर सकते हो। लॉस उतना ही रिवर्स कर सकते हैं जितना हम लोग लॉस रिवर्सल उतना ही हो सकता है जितना लॉस बुक हुआ था। तो 2.5 का लॉस बुक हुआ था, वो रिवर्स करेंगे ना, तो इन्वेंट्री बराबर 10 लाख की बन जाएगी। इन्वेंट्री 10 लाख की बन जाएगी। So they want us to calculate what will be the value of inventory on 31st March X1 and X2. X1 को होगी 7.5 लैक्स और 7.5 लैक्स रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री 2.5 लैक्स का लॉस बुक करेंगे। और 31st मार्च X2 को 10 मिलियंस और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा इन्वेंट्री टू PL। ये जो 2.5 का लॉस बुक हुआ था ये रिवर्स हो जाएगा। दिस लॉस कैन बी रिवर्स्ड। चलो, दैट्स इट। ये आंसर मैं लिखवा देता हूँ। आई विल मेक यू राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख लेते हैं ये वाला आंसर। पहले बात तो मेरे को वो एडजस्टिंग इवेंट बताना पड़ेगा, मैं क्यों 7.5 लैक्स लेने वाला हूँ। क्योंकि कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स, कंटिजेंसी तो वर्ड नहीं है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो होता है, रिपोर्टिंग पीरियड डेट ऑफ अप्रूवल तक अगर कोई इवेंट होते हैं तो वो हम बैलेंस शीट डेट में एडजस्ट करते हैं। सो पहला पैराग्राफ लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग दोनों साल का डिटेल्स देंगे। देखो, एज पर Ind AS 2 as per Ind AS 2 inventories as per Ind AS 2 inventories comma inventory is valued at lower of cost or NRV is valued at lower of cost at lower of cost और NRV। आपने कोई इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट की डिटेल देखी रखी है। फर्दर as per Ind AS 10
further as per Ind AS 10. Events after balance sheet date. Event after balance sheet date. Decline in NRV. Decline in NRV below cost. Decline in NRV below cost. Below cost of inventory after balance sheet date till the date of approval of accounts. Decline in NRV below cost. Decline in inventory below cost of inventory. Decline in inventory. Decline in NRV below cost of inventory after balance sheet date till the date of approval of accounts is considered as adjusting event. सो पहले Ind AS 2 की रूलिंग दी मैंने. एज पर Ind AS 2 क्या करना चाहिए? एज पर Ind AS 2 इन्वेंट्री को हमको वैल्यू करना चाहिए एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सेकेंड मैंने गाइडेंस ये बताया कि अगर Ind AS 10 के वजह से एज पर Ind AS 10 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर डिक्लाइन NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिक्लाइन इन NRV बिलो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर बैलेंस शीट डेट है बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल, तो उसको कंसीडर करना चाहिए एडजस्टिंग इवेंट. और 31 मार्च को हमको उसको एडजस्ट कर देना चाहिए. बिलो दिस पॉइंट ए पहला केस है 31 मार्च 2000 का. मार्च 2001 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10 मिलियन है, लेकिन एनआरवी हमको लेना पड़ेगा 7.5 मिलियन. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री $10 million, बट एनआरवी अरे एनआरवी हम लोग एज पर वो एडजस्टिंग इवेंट मान के 8.5 मिलियन था और उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे ना तो 7.5 मिलियन हो जाएगी. हाउ वी गॉट सेलिंग प्राइस 7.5 मिलियंस. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस in ordinary course of business $8 million less expected selling expenses $0.5 million. So 31 मार्च X1 को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10 मिलियन है बट एनआरवी 7.5 मिलियन है.
और 7.5 मिलियंस इंडियस 10 के हिसाब से हम लोग ने एडजस्टिंग इवेंट मान के लिया। तो फिर अपने को इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए 7.5 मिलियंस और 2.5 मिलियंस का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। सो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंगली inventory shall be valued at 7.5 millions. That is lower of cost or NRV, and loss of rupees 2.5 millions. Loss of rupees 2.5 millions. ये 2.5 मिलियंस का जो लॉस है ना, ये अपने को राइट ऑफ करना चाहिए। शुड बी रिटर्न ऑफ टू P&L स्टेटमेंट। शुड बी रिटर्न ऑफ टू P&L स्टेटमेंट। ये लो 31 मार्च X1 का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अगले साल थिंग्स इम्प्रूव्ड और जो NRV है वो हो गया 11 मिलियंस और एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस था 0.5, मतलब NRV सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस 10.5 हो गया और कॉस्ट तो वही 10 लाख है। तो अगले साल कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में लिखो नंबर बी। March 31 X2। हाँ, यहाँ पे NRV सुधर गया है। अभी करंटली NRV सुधर के कितना हो गया है, 11 माइनस 0.5 करेंगे तो 10.5 हो गया। सो 31 मार्च X2 को जैसे पिछले साल हमने लिखा था, एक मिनट रुक जाओ, तुम कुछ मत देखना, एक मिनट रुक जाओ। March 31 X2 cost of inventory 10 millions but NRV is 10.5 millions. How 10.5 millions? Expected selling price in ordinary course of business 11 millions and expected selling expenses 0.5 millions. So accordingly inventory shall be valued at कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में इस बार कॉस्ट लोअर है 10 मिलियंस, 10 मिलियंस दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV। सो लॉस नहीं, अब ये रिवर्स होएगा। एंड ये जो हमने 2.5 का लॉस रिवर्स किया था ना, ये अपने को लास्ट ईयर जो हमने बुक किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा एंड लॉस ऑफ 2.5 मिलियंस, एक मिनट, एंड लॉस ऑफ 2.5 मिलियंस
हाँ, लॉस ऑफ 2.5 मिलियंस जो हम लोग ने, एक मिनट, यहाँ तक सेम ही रखता हूँ. लॉस ऑफ 2.5 मिलियंस which was written off in P&L statement of previous year should be reversed. देख लो, एकदम मिनिमम चेंजेस के साथ मैंने आंसर बना लिया. मेरा पूरा आंसर पढ़ोगे ना तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10 मिलियंस बट एनआरवी 10.5 मिलियंस एक्सपेक्टेड, वो डिटेल्स लिख दिया. अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट 10 मिलियंस, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी, एंड लॉस ऑफ 2.5 मिलियंस व्हिच वाज रिटन ऑफ टू पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर शुड बी रिवर्स. चलो कॉपी मारो, ये कॉपी मारो. इससे बेटर आंसर नहीं हो सकता, इससे सुंदर आंसर नहीं हो सकता है. एकदम सिंप्लीफाइड आंसर. कॉपी दिस. ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियस ईयर्स लॉस, ये AS2 में नहीं है, ये इंडेस 2 का पार्ट है. मैंने लास्ट में करवाया था, तुम स्टैंडर्ड में देखो, इट्स गिवन. कंप्लीट हो जाए तो बोल देना मेरे. Done, sir. ओके. अब क्वेश्चन नंबर पहले 5 और 6 करेंगे. फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. Sharp Trading purchases motorcycles from various countries and exports them to Europe. मोटरसाइकिल्स खरीदते और एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब मोटरसाइकिल ही उनका आइटम ऑफ कमोडिटी है जिसमें डील करते हैं, वही उनकी इन्वेंट्री होगी. शार्प ट्रेडिंग इनकर्ड दीज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग 2000X1. कॉस्ट ऑफ परचेज, तो ये हो गया परचेज प्राइस. परचेज प्राइस के समय अगर कोई डिस्काउंट लगे तो वो माइनस करना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट ये 5 lakhs, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. ये सब हमने सीख रखा, हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इंपोर्ट ड्यूटीज, दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन इन लोकेशन. यस, परचेजर्स ये भी ऐड होगा, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन. अदर हैंडलिंग कॉस्ट, यस, प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने का खर्चा है. बट सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये इन्वेंट्री को लाने का खर्चा नहीं है, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज है. इन्वेंट्री आए या नहीं आए ये देना ही पड़ेगा आपको. ये क्या है, ब्रोकरेज कमीशन पेएबल टू इंडेंटिंग एजेंट्स फॉर अरेंजिंग इंपोर्ट्स. यस, ये ऐड होगा क्योंकि ये भी साथ में ऐड होएगा, क्योंकि ये भी इन्वेंट्री को लाने का खर्चा है.
सेल्स कमीशन, अरे ये तो बेचने का खर्चा, ये मत लेना। सेल्स कमीशन टू सेल्स एजेंट, ये इन्वेंट्री लाने का खर्चा नहीं है, बेचने का खर्चा है। आफ्टर सेल्स वारंटी, ये बेचने के बाद का खर्चा है, ये इन्वेंट्री को जगह तक लाने का खर्चा नहीं है। सो ये जो 3 आइटम मैंने क्रॉस किए, इनको छोड़ के बाकी सब ऐड कर देंगे। शार्प ट्रेडिंग कंपनी नीड्स योर एडवाइस that which of the above items should be included in cost of inventory and wants you to calculate the cost of inventory। लो ना, cost of inventory मैंने निकाल तो लिया इधर। 5 lakhs minus 10,000 plus 200 plus 250 plus 100 plus 300, 4,90,850। 4,90,850, this is the cost of inventory। लिखो, write down। Question number 5, as per Ind AS 2, all expenses incurred to bring inventory all expenses incurred to bring inventory to its present condition and location as per Ind AS 2, all expenses incurred to bring inventory to its present condition and location should be included in cost of inventory। In the present case, cost of inventory will be as under। In the present case, cost of inventory will be as under purchase price minus trade discount plus expenses incurred to bring inventory to its present condition or location। To its present condition and location import duties, freight and insurance
import duty, freight and insurance, other handling cost, salaries fee, brokerage commission payable, brokerage to agents arranging imports, बस 3 चीज को क्रॉस करके बाकी सब ले लिया। इससे मिलेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। As per Ind AS 2, purchase price 5 lakhs, trade discount है 10,000, so net of trade discount हो गया 4,90,000, और अदर एक्सपेंसेस है 200, 250, 100 और 300, 200, 250, $200, 250, 100 and 300, so 450, 550, 550, 850 हो गया। और वो जो 3 एक्सपेंसेस नहीं लिया ना, उसके लिए नोट लिख दो। एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड, expenses not incurred to bring inventory to its present condition and location expenses not incurred to bring inventory to its present condition and location expenses not incurred to bring inventory to its present condition and location should not be included in cost of inventory should not be included in cost of inventory but should be written off to P&L statement as under the details of these expenses are as under. The details of these expenses are as under.
हमने 3 आइटम को क्रॉस किया था। सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट 15,000, फिर दूसरा सेल्स कमीशन टू सेल्स एजेंट, खाली सेल्स कमीशन लिख दो, इट इज इनफ। आफ्टर सेल्स वारंटी, $600 है, 160 नहीं है। $15,750। That should be written off to P&L statement। ये अपना आंसर बन गया, कंप्लीट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, 4 नहीं 5 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। On 1st January, an entity accepted an order for 7,000 custom-made corporate gifts. 7,000 custom-made corporate gifts का ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। 1st Jan को 3rd Jan को एंटिटी परचेज रॉ मटेरियल्स, अब बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज किया। इन प्रोडक्शन प्रोसेस 5,50,000 का रॉ मटेरियल्स। अब फिनिश गुड्स बनाना है तो रॉ मटेरियल इज फर्स्ट। इट इंक्लूड्स रिफंडेबल परचेज टैक्स। अरे नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स होता तो ऐड करते थे, ये रिफंडेबल माइनस करना पड़ेगा। मतलब रॉ मटेरियल शुड बी टेकन एट 5 lakhs ओनली, 50,000 रिफंडेबल टैक्स माइनस हो जाएगा। द परचेज प्राइस वॉज फंडेड बाय अ लोन ऑफ 5,55,000 इंक्लूडिंग 5,000 लोन रेजिंग फीस। तो लोन रेजिंग फीस एंड द लोन इज सिक्योर्ड बाय इन्वेंट्रीज। ठीक है, मतलब एक लोन लिया है, कितने का लोन लिया उन्होंने 5,50,000 और 5,000 उसमें लोन रेजिंग फीस है। अरे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाने के लिए कोई सब्सटेंशियल टाइम थोड़ी लगेगा। ड्यूरिंग जनवरी द एंटिटी डिजाइन द कॉर्पोरेट गिफ्ट्स फॉर कस्टमर्स एंड द डिजाइन कॉस्ट। अरे कोई सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगेगा, तो कोई बोरोइंग कॉस्ट अपने को ऐड नहीं करना है, तो ये अपने कुछ काम का नहीं है, ना तो लोन प्रोसेसिंग फीस ना बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्यूरिंग 2000X1 हाँ डिज़ाइन बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगा है, ये तो क्या है फिनिश गुड्स बनाने का खर्चा है। डिज़ाइनर को हमने 7,000 रुपीज़ दिया, लेबर ने काम किया 3,000, ये ऐड होंगे, ये सब ऐड होंगे 7,000 3,000, ऑल दिस विल बी एडेड। फिर ड्यूरिंग द ईयर
Entity's production team developed the manufacturing techniques and made further modification necessary to bring inventories to conditions specified in the agreement, and following expenses were incurred for testing phase. ये सब तो इन्वेंट्री बनाने का ही खर्चा है. टेस्टिंग, ट्रायल रन, उसके लिए मटेरियल 21,000 का मटेरियल है. मटेरियल्स नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम सेल. ठीक है, 21,000 का मटेरियल, 11,000 का लेबर एंड 5,000 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. कितना हो गया ये ट्रायल रन कॉस्ट? 21 प्लस 11 इज 32 प्लस 5 37,000 हो गया क्या? 37,000 ये ट्रायल रन कॉस्ट बोलूंगा मैं. During February, entity incurred the following additional cost in manufacturing the customized gift. जो भी गिफ्ट बनाने का खर्चा वो तो सब ऐड होगा. ये 55,000 ये भी बनाने का खर्चा है, 65,000 भी बनाने का खर्चा है. So 55,000 plus 65 और depreciation of plant used to manufacture, ये सब बनाने का खर्चा, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. फिर आगे द कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्ट वर रेडी फॉर सेल ऑन 1 March. नो एबनॉर्मल वेस्टेज इनकर्ड इन डेवलपमेंट. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट रीजंस एंड कैलकुलेशन वेरेवर रिक्वायर्ड. सी बोरोइंग कॉस्ट का झमेला भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया. दे हैव नॉट गिवन मी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलो करते हैं. मैं नए पेज पे जा रहा हूं, मेरे पास 2-3 लाइन्स ही बची थी. क्वेश्चन नंबर 6. कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. लाइन से चलेंगे. परचेज रॉ मटेरियल्स 5,50,000, जिसमें से 50,000 रिफंडेबल टैक्स है, तो ये माइनस कर देंगे. सो लिखो कॉस्ट ऑफ परचेज. नंबर 1 परचेज प्राइस. नंबर 1 परचेज प्राइस. एक 7-8 लाइन का बना लो कॉलम, फिर एक्सटेंड करते जाएंगे या रब कर देंगे. पेंसिल से बनाया करो. 5,50,000 में से 50,000 निकाल देंगे. आई विल टेक 5 लाख और उसका डिटेल्स बाजू में लिख देंगे. परचेज प्राइस लेस refundable tax. $50,000. So 5,50,000 में से हमने 50 माइनस कर दिया. आगे द परचेज प्राइस वॉज फंडेड बाय रेजिंग अ लोन ऑफ 5,55,000. अरे लोन रेजिंग फीस नहीं लेनी है अपने. लोन लोन रेजिंग फीस, ये पार्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री.
ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करेंगे। इसको हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे। लोन जो है ना, दैट विल गो टू बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। ये इन्वेंट्री बनाने का खर्चा नहीं, और वैसे भी बनने में कोई बहुत सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगा है। फिर आगे और क्या दिया है? एंटिटी डिजाइन कॉर्पोरेट गिफ्ट्स फॉर कस्टमर्स, और ये डिजाइनिंग कॉस्ट है। डिजाइनर को हमने क्या क्या पेमेंट किया? अरे डिजाइनर को हमने क्या क्या पेमेंट किया? 7,000 का कॉस्ट ऑफ डिजाइनर है, 7,000 और 3,000, मतलब ये डिजाइनिंग कॉस्ट बोल के डाल देते हैं ना। डिजाइनिंग कॉस्ट 10,000, डिजाइनिंग कॉस्ट 10,000, डिजाइनर्स एक्सपेंस और लेबर एक्सपेंस। डिजाइनर कॉस्ट 7,000 प्लस लेबर। क्योंकि ये तो इन्वेंट्री बनाने का खर्चा है ना, सो ये 10,000 ले लिया। मैं लाइन से चल रहा हूं। फिर उसके आगे क्या दिया है? During February, entity's production team developed manufacturing technique and made the modifications necessary to inventories in agreement, and the following costs were incurred in testing phase. अरे ये टेस्टिंग का जो खर्चा ये पहले नहीं लेंगे, टेस्टिंग बाद में। ये टेस्टिंग फेज बाद में, 37,000 है ना टेस्टिंग का, ये बाद में लेंगे। ड्यूरिंग फेब्रुवरी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। हाँ, एडिशनल कॉस्ट तो ये प्रोडक्शन का ही तो खर्चा है ना, कंज्यूमेबल्स ये सब अपने को लेना ही है। सो लिखो प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। कितना प्रोडक्शन एक्सपेंसेस? 55 प्लस 65 प्लस 15, 55 प्लस 65 प्लस 16, एक मिनट है। 55,000 प्लस 65,000, 1,35,000। इसका डिटेल्स हम लोग साइड में दे देते हैं ना। कंज्यूमेबल स्टोर्स, लेबर एंड डेप्रिसिएशन। $55,000, लेबर 65,000, and depreciation of plant। जो प्लांट यूज हुआ ना ये बनाने के लिए, उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा। ये लो, ये 1,35,000 कैसे लिखा वो लिख दिया। इसके बाद ये ट्रायल रन का एक्सपेंस लिख दो, प्लस टेस्टिंग एक्सपेंसेस।
21 प्लस 11 प्लस ये 37,000 टेस्टिंग एक्सपेंसेस है. मटेरियल, लेबर एंड डेप्रिसिएशन. $21,000. Depreciation of plant 5,000. That's it. एक पॉइंट और डाल देता हूँ, बोरिंग कॉस्ट. बोरिंग कॉस्ट नहीं लेना है अपने को, क्योंकि कोई सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगा इसको, और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया, सच्ची बोले तो. ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. जैन में चालू हुआ, फेब में तो बन गया, बस खत्म. $5 lakhs plus 10,000 plus 1,35,000 plus 37,000, 6,82,000. This is cost, total cost of inventory. Yes, this is total cost of inventory. So this is the best way I can give the answer for this particular question. टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 कर लिया, एक क्वेश्चन पेंडिंग रहा. ये क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं, आगे के लेक्चर में करेंगे. आई विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर. सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रखा है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए. चलो, दैट्स इट. विल स्टॉप इट हियर.